Hello and welcome everyone. Myself CMA Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 14, financial derivatives. Earlier we have completed till the question number 39 from old syllabus. Now syllabus has been changed, but these questions which we are going to solve now, those are totally same in the new syllabus. So I'm just covering the same questions which were taken from the old syllabus to new syllabus. See, I don't have new study material, so that's why I'm not able to record all the questions relating to the new syllabus. But I have my old study material. From that I check some questions, nearby 7 to 8 questions are totally same, and I have not provided videos for that. So I'm just continuing this topic. Okay, so here I have written new question number. It means question number in the new study material. Okay, so question number 40, it was in old study material. Same question is there, question number 67, page number 668, updated study material. Okay, new one. So let's start. See, in SCM also and in SFM also, most of the questions are same from old syllabus to new syllabus. So please check the playlist as per the topic. Okay, टॉपिक जैसे जैसे मैंने डाला है उसके हिसाब से आप थोड़ा सा प्लेलिस्ट चेक करो. बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूरा का पूरा सेम है ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में. ओके, बिकॉज आई नीड सम टाइम टू रिकॉर्ड द वीडियोज फॉर द न्यू स्टडी मटेरियल, बिकॉज I don't have a new study material. I have to arrange that new study material so that I will require some time. इसीलिए आपको क्या करना है, आप जो भी मेरा पुराना प्लेलिस्ट है ओल्ड सिलेबस का उसमें चेक करो. आपको खाली क्वेश्चन आपको चेक करना है, क्वेश्चन दिख जाएगा. जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा सेम उठा के डाला है. तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 60-70% आपको सेम दिखेगा. तो आप प्लीज़ वो वाले सारे टॉपिक्स SFM रहने दो, SCM रहने दो, आपको एक बार चेक करना है प्लेलिस्ट. ओके, सो प्लीज़ चेक द प्लेलिस्ट फॉर द अर्लियर क्वेश्चंस इवन दो यू आर इन न्यू सिलेबस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर. Question number 67. Sandeep Limited is planning to expand its cotton apparel division by setting up 100 looms, okay, and installing the adequate machinery in Gujarat. Here one company's information is given, which is Sandeep Limited. It expects the total cost of the project including cost of land to be 3 crores, repayable at the end of the third year. Okay, so basically here they are giving the information regarding loan. Okay, basically he want a loan of a 3 crore. Okay, along with machinery, land and other things. Okay, for the business purpose. Fixed interest rate 11% for Sandeep Limited, and floating interest rate is MIBOR plus 2.5%. Okay, so here see, अनदर कंपनी इज़ गिवन, सुष्मिता कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड, SCDL शॉर्ट में हम लोग इसको बोल सकते हैं, इज़ ऑल्सो ऑन एन एक्सपांशन मोड. इट रिक्वायर्स 3 करोड़. सी, अमाउंट इज सेम, 3 करोड़ 3 करोड़. ओके, repayable at the end of third year. Time period is also same, amount is same, time period is also same. Obviously interest rate will not be same as per your company's reputation, rating and time period for that company in the market. Okay, accordingly आपका interest rate change होता है. तो यहाँ पे fixed interest rate is given, floating interest rate is given. See here 11%, 10% here. Okay, see, if company is more reputed normally and its rating is high, then interest rate is low. Okay, next question में हम लोग ये देखेंगे exactly concept क्या है, but just I am explaining you. Sandeep anticipates a contraction in economy and therefore a reduction in the interest rates, and therefore wants to opt floating rate. Okay, so basically in this question this is a interest rate swap. Okay, in this question normally they give us objective of that company. Okay, objective आपको बताया जाएगा कंपनी का कि क्या है, और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, स्वैप पॉसिबल है नहीं है वो आपको फाइंड आउट करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल संदीप लिमिटेड ऑब्जेक्टिव इज टू बोरो मनी दैट इज 3 करोड़ ऑन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट. ओके, फ्लोटिंग पे संदीप क्या करना चाहता है, लोन लेना चाहता है. ओके, देन SCDL is worried about
rising in the inflation and wants to freeze the interest rate by the option choosing fixed interest rate option. Okay, SCDL, ये SCDL ये फिक्स पे लेना चाहता है. ओके, सो हियर ऑब्जेक्टिव ऑफ संदीप इज फ्लोटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ SCDL is, that is Sushmita, that is fixed. Okay, so here we got the information about objective. Both these companies enter into the swap agreement. Okay, सी स्वैप एग्रीमेंट में क्या करना होता है अब भी हम लोग आंसर में देखेंगे. स्वैप एग्रीमेंट मीन्स both the companies will analyze the interest rates and its differences, and from that they try to earn a gain. Okay, means they try to reduce their interest rate. That is called as swap, interest swap. Okay, let's read. If the interest payments are to be made half yearly basis. Okay, so interest payment is made half yearly basis, and how much years are there? See, third year, it means 3 years, and half yearly basis payment, it means 6 times we are going to pay. 6 months, 6 months, 6 months, 6 months, like that. So total 3 years are there, half yearly payment is there, it means 6 times payment will be there. Okay, next, on the interest prevailing at the beginning of this 6 months period. Okay, Mumbai interbank offer rate, that is MIBOR. Okay, this MIBOR's information is given here, that is full form is given here. Okay, MIBOR, LIBOR, that kind of information they will give in the question. Today is 10%, and the rate at the beginning of the next 5 half years is given. Okay, so this is the first rate. After that second, third, fourth, fifth and sixth. I have told you 6 times we are going to pay the interest, so 6 interest rates are given. Okay, ascertain the cash flow, who has been the biggest beneficiary. Okay, so here we have to do the swap calculation. Okay, but one information is missing. See, 2 companies are there, they will earn the gain. So there should be an information that how much percentage of gain that Sandeep Limited will enjoy, and how much percentage of gain that SCDL will enjoy, but information is missing. Okay, इस क्वेश्चन में वो information दिया नहीं है, तो assumption दिया है आंसर में directly. Actually it should be given in question only. Okay, this information, but they have given that in answer. Okay, so let's start the answer. See, first of all, see question number 40, action, and then net cost. First of all, see Sandeep Limited, and then SCDL. Okay, fixed interest, floating interest, fixed interest, floating interest, which is already given in the question. See, for Sandeep Limited it is given here, and for SCDL it is given here. We will just copy it. Okay, first of all, fixed interest of Sandeep, it is 11%, and it is 10%, and here I am just writing in short M plus, that is MIBOR plus 2.5%, and here it is MIBOR plus 1%. ठीक है, in any question of interest swap, first of all we are going to find out the difference. Okay, here 11% minus 10%, it is difference is 1%. Okay, difference is nothing but the gain. After that MIBOR, that's okay, but here 2.5, see 2.5 minus 2.5 minus 1.5. Okay, see 2.5 minus 1%, it is 1.5%. I hope you are getting me. I am just reducing. Okay, nothing more than that. 11% minus 10%, it is 1%. 2.5 minus 1, it is 1.5%. Okay, see their objective which is already given in the question. Okay, Sandeep anticipates that floating interest rate. Okay, so Sandeep का objective क्या था? Floating. Sandeep want a loan but floating interest rate, and in case of SCDL, that is Sushmita Limited, its objective was fixed interest. Okay, objective is fixed, but now in the swap we are going to decide that which company will take a loan on which interest rate. Okay, स्वैप में कैसे होता है, आप डिफरेंस निकालोगे, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि कौन से कंपनी के लिए कौन सा इंटरेस्ट रेट बेटर रहेगा. ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस ज़्यादा है. ये जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट विल गिव यू द स्वैप
rate, interest rate. Okay, here 1% and 1.5%, which is better? 1.5% gain is obviously better in this case. Okay, in this case look at the rate here, MIBOR plus 2.5%. this is the interest rate which company will going to pay, company is going to pay. So obviously अगर इंटरेस्ट कम रहेगा तो बेटर रहेगा. ओके, लुक एट दिस, यहाँ पे कम कौन सा है? ये अपना गेन ज़्यादा है. ओके, गेन इज़ मोर 1.5%. अभी यही इस पे ही हम लोग को फोकस करना है. जहाँ पे आपका गेन ज़्यादा होगा उस पे आपको फोकस करना है. ओके, सो हियर गेन इज़ मोर, सो हियर वी विल compare the interest rate. It is 2.5, it is 1%. So obviously beneficial is 1%. Okay, MIBOR plus 1% is the beneficial. Okay, SCDL का ये रेट कम है. ओके, बट SCDL का ऑब्जेक्टिव क्या है? फिक्स. ओके, बट वी विल टेल SCDL दैट टेक अ लोन एट अ फ्लोटिंग. ओके, आपको करना क्या है? देखो, हिंदी में भी एक बार बता देती हूँ. सबसे पहले डिफरेंस देखना है. 1.5% ये ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब गेन ज़्यादा है. ओके, ये डिफरेंस इज नथिंग बट आपका क्या होता है? गेन. गेन ज़्यादा है, बराबर. तो अब भी इसमें ये दोनों में से कौन सा रेट कम है वही आपको गेन दिलाएगा, राइट. सो रेट इज़ दिस, कम रेट. ओके, लेस रेट. सो इट इज़ फ्लोटिंग. SCDL के लिए हम लोग क्या सजेस्ट करेंगे स्वैप एग्रीमेंट में? फ्लोटिंग. आई होप यू आर गेटिंग मी. If one company is taking loan at a floating, so obviously another company has to go for fix. There is no option. Okay, another company has to go for fix. ठीक है. So here we have decided that in swap objective will be different. Okay, see, normal objective it was floating for Sandeep. Now in a swap it is fixed. Here objective was fixed and now in a swap it is floating. I hope you are getting me. You have to decide for just one company, another company has to take on the second option. Okay, that is fixed. Now steps, we will calculate the gain, whatever gain these companies are getting, we will calculate that. ठीक है. First of all, calculation of total interest rate as per their objective. Okay, if floating if swap agreement was not there, in that case their objective will be floating and fixed, right. संदीप का क्या रहता था? फ्लोटिंग. ओके, विदाउट एनी स्वैप एग्रीमेंट देयर ऑब्जेक्टिव वॉज फ्लोटिंग एंड फिक्स, राइट. वी आर जस्ट कंपेयरिंग दैट वॉट एवर गेन दे आर गेटिंग. सी, फ्लोटिंग में अपना जो ये है संदीप, उसका रेट क्या है? MIBOR प्लस 2.5%, राइट. यहाँ पे SCDL का फिक्स वाला इंटरेस्ट रेट दैट इज 10%, राइट. सी, टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर देयर ऑब्जेक्टिव. सो टोटल में क्या आएगा? MIBOR का MIBOR आएगा, MIBOR प्लस 10% प्लस 2.5%, दैट इज 12.5%. आई होप यू आर गेटिंग मी. इट्स वेरी सिंपल. ओके, ये क्वेश्चन आप आराम से समझ लो, बाकी वाला क्वेश्चन आपको आराम से आने लगेगा. ठीक है, आ जाओ. कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर स्वैप. नाउ इन स्वैप देयर ऑब्जेक्टिव, इट मीन्स देयर इंटरेस्ट रेट्स आर टोटली चेंज. ओके, अभी संदीप के लिए देखो, स्वैप में आपने क्या डिसाइड किया है? संदीप के लिए फिक्स्ड और SCDL के लिए फ्लोटिंग. ओके, वी हैव डिसाइडेड फॉर संदीप फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट इज 11% एंड फॉर SCDL फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट इज MIBOR प्लस 1%. ठीक है, लेट्स टेक द टोटल एज पर स्वैप. MIBOR प्लस 11 प्लस 1. ओके, इट इज 12%. Okay, 12%. I hope you are getting me. Now calculation of gain due to swap. First equation minus second equation, it means this minus this. Okay, first equation MIBOR plus 12.5% minus MIBOR plus 12%. ओके, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, MIBOR कैंसल. ओके, बिकॉज हियर मार्किंग विल चेंज. प्लस MIBOR माइनस MIBOR कैंसल. देन 12.5% हियर माइनस 12. ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ऑब्वियसली इन लोग के जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगे. ओके, सो 12.5 माइनस 12, इट इज़ 0.5%. ओके, 0.5%. सिंपल है. MIBOR प्लस 12.5%,
उसमें से मिबोर प्लस 12% अगर गया तो 0.5 ही बचेगा ना, सो 0.5% इज द गेन। ओके, नाउ एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, बट एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है कि ये जो गेन है वो कौन शेयर करेगा, मतलब कौन से रेशो में कंपनी शेयर करेंगी। सी, नॉर्मली स्वैप एग्रीमेंट इज डन for the benefit of both the companies. In this question, Sandeep and Sushmita, both the companies should share this benefit, that is gain, but information is missing. In that case, see, assumption, we have to go for assumption that the swap gain is taken by Sandeep. Okay, because in the answer they have taken directly, they have given that gain directly to the Sandeep, so we don't have any option, we have to go for that. In the exam, if information is missing, you can directly write this assumption that the entire gain is given to Sandeep. Okay, if we share in another ratio, entire answer will change, so that's why I'm not changing, I'm just keeping it as it is. Okay, so this 0.5 entirely taken by Sandeep Limited. Okay, maybe there are chances that this swap agreement इज इंट्रोड्यूस बाय संदीप लिमिटेड। ओके, ऐसे भी हो सकता है कि ये जो स्वैप का एग्रीमेंट का आइडिया है वो संदीप ने लाया है तो वो पूरा गेन ले लेगा। ओके, सो इसीलिए अभी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम लोग संदीप को दे देंगे। ओके, बट नॉर्मली इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे हैव गिवन द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग शेयरिंग रेशियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अपना एक काम तो हो गया कि गेन 0.5% आ रहा है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप, सी दिस इज अ चार्ट। ओके, अपना पैसा इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ पे कैसे जाएगा उसका ये चार्ट है। चलो, तो ये हम लोग समझते हैं कि हुआ क्या। हियर संदीप लिमिटेड एंड हियर SCDL, दैट इज सुष्मिता लिमिटेड इज देयर। संदीप ने उसके बैंक से लोन लिया है और SCDL ने उसके बैंक से लोन लिया है। ओके, सो देयर आर टू डिफरेंट बैंक्स। संदीप इज टेकिंग लोन फ्रॉम हिज बैंक एंड सुष्मिता लिमिटेड इज टेकिंग लोन फ्रॉम दैट देयर बैंक। ओके, हियर bank is given, bank will give loan of 3 crore, okay, to SCDL and to Sandeep also. Okay, उनका बैंक उनको लोन दे रहा है, जो भी उनको अमाउंट रिक्वायर्ड है 3 करोड़ का। नाउ व्हाट अबाउट इंटरेस्ट? ओके, इंटरेस्ट के बारे में हमको सोचना है कि कौन कितना इंटरेस्ट का रेट जो है वो बैंक को देगा। ठीक है, सी, अकॉर्डिंग टू स्वैप एग्रीमेंट, ओके, स्वैप एग्रीमेंट के हिसाब से अपना क्या डिसाइड हुआ है वो एक बार चेक करते हैं। सी, स्वैप में अपना जो संदीप है वो कितना देगा बैंक को फिक्स, और अपना जो SCDL है वो कितना देगा फ्लोटिंग देगा। ओके, सो उसके हिसाब से हम लोग को पेमेंट करना है। सी, संदीप विल गिव फिक्स दैट इज 11% टू द बैंक एंड SCDL विल गिव फ्लोटिंग दैट इज मिबोर प्लस 1% टू द बैंक। आई होप यू आर गेटिंग मी। आप जब बैंक को पेमेंट करोगे तब आपको क्या याद में रखना है कि आपने स्वैप एग्रीमेंट के हिसाब से क्या डिसाइड किया है। तो संदीप क्या देगा बैंक को 11%, राइट, एंड ये जो है SCDL वो बैंक को क्या देगा मिबोर प्लस 1%, बराबर, यही तो डिसाइड हुआ है, बराबर। अभी इधर तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी देखो क्या होगा। संदीप है, सुष्मिता है, बैंक है, लोन मिला, अभी इंटरेस्ट हम लोग स्वैप के हिसाब से बैंक को पे किए, बराबर। बट अभी आपको ये सोचना है, सी, संदीप का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था। ओके, दिस इज अ स्वैप। ओके, ये स्वैप का इंटरेस्ट रेट है, बट व्हाट वाज द संदीप ऑब्जेक्टिव? संदीप क्या करेगा, उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से किसको देगा, सुष्मिता को, और सुष्मिता क्या करेगी अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से किसको देगी, संदीप को। ओके, बिकॉज संदीप वॉज नॉट रेडी फॉर फिक्स इंटरेस्ट, ही वॉन्ट फ्लोटिंग इंटरेस्ट, बराबर। सो ही इज गिविंग टू द बैंक दैट इज फिक्स, but he will give floating to the Sushmita. Okay, and Sushmita is giving floating to the bank, but Sushmita will give fixed to the Sandeep. Okay, it's very simple. Okay, see, first of all in the diagram what we will do, bank Sandeep and then Sushmita bank. Okay, loan we are taking and we are paying interest by swap. That's okay. I hope यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। Okay, see, Sandeep and Sushmita bank loan and interest as per swap. Okay, but now we will write we will calculate the interest as per their objective. Okay, अभी देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, मिनिमम रेट कंसिडर करना है। ठीक है, सी,
फिक्स इंटरेस्ट 11 एंड 10. ओके, सो फिक्स आपको ध्यान में क्या रखना है 10%. एंड यहाँ पे फ्लोटिंग मिबोर प्लस 2.5%. ओके, एंड यहाँ पे मिबोर प्लस 1%. सो वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस. ओके, सी एज पर संदीप क्या चाहता है, फ्लोटिंग पे मुझे पे करना है, बराबर. ओके, सो संदीप फिक्स पे एज पर स्वैप बैंक को दे चुका है. संदीप हैज़ पेड इंटरेस्ट एज पर स्वैप, दैट इज फिक्स इंटरेस्ट टू द बैंक. नाउ ही विल गिव एज पर हिज ऑब्जेक्टिव, दैट इज फ्लोटिंग मिबोर प्लस 1%. ओके, मिबोर प्लस 1% वो किसको देगा, SCDL सुष्मिता को. ठीक है, एंड सुष्मिता का ऑब्जेक्टिव क्या था, फिक्स का, और फिक्स का इंटरेस्ट रेट कितना है 10%. ओके, आई होप यू आर गेटिंग मी. सी दिस चार्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ नेट कॉस्ट टू द संदीप के लिए नेट कॉस्ट क्या हुआ, सी 11% ही इज गिविंग टू द बैंक. ओके, 11% उसने किसको दिया, बैंक को, बट सुष्मिता ने उसको कितना दिया है 10%. सो ऑब्वियसली उसका नेट कॉस्ट कितना हुआ फिक्स रेट का 1%. ओके, एंड यहाँ पे मिबोर प्लस 1% वो किसको दे रहा है, सुष्मिता को. ओके, सी 11% टू द बैंक माइनस सुष्मिता ने उसको कितना दिया 10%, बराबर, प्लस उसने सुष्मिता को पे किया है 1%. ठीक है, यहाँ पे 11% माइनस 10%, इट इज 1% प्लस मिबोर प्लस 1%. ओके, सो अल्टीमेटली संदीप के लिए बेनिफिट कितना हुआ, मतलब उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना हुआ, मिबोर प्लस 2%. ओके, मिबोर प्लस 2%. आई होप यू आर गेटिंग मी. इफ दिस स्वैप एग्रीमेंट वॉज नॉट देयर, इन दैट केस संदीप को कितना पे करना पड़ता था, उसका जो ओरिजिनल रेट था. सी संदीप का ओरिजिनल रेट कितना था फ्लोटिंग का, और उसका ऑब्जेक्टिव फ्लोटिंग था, राइट, मिबोर प्लस 2.5%. बट यहाँ पे आफ्टर स्वैप उसको कितना पे करना पड़ रहा है, मिबोर प्लस 2%. ओके, आफ्टर दैट नेट कॉस्ट टू द ये सुष्मिता में हुआ क्या, देखो सुष्मिता ने बैंक में कितना पे किया, मिबोर प्लस 1%. ओके, एंड सुष्मिता ने इधर संदीप को कितना पे किया 10%, बराबर, दोनों जगह पे उसको पेमेंट हो रहा है. ठीक है, और यहाँ पे संदीप ने उसको सुष्मिता को मिबोर प्लस 1% दिया है. ओके, सो हियर संदीप इज गिविंग मिबोर प्लस 1% एंड दैट सेम इंटरेस्ट सुष्मिता इज गिविंग टू द बैंक. सो हियर इट इज कैंसल्ड. ओके, संदीप ने सुष्मिता को दिया, सुष्मिता ने यहाँ पे बैंक को दिया, तो ये मिबोर वाला कैंसिल हो गया, और सुष्मिता को कितना अभी सिर्फ संदीप को देना है 10%. सो नेट कॉस्ट टू द सुष्मिता इज 10%. ओके, तो यहाँ पे दोनों का ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली हो गया फाइनल. ओके, देखो सुष्मिता को कैसे चाहिए था, उसका लोन फिक्स पे मिला, उसको फिक्स पे 10%, और यहाँ पे संदीप को कैसे चाहिए था, फ्लोटिंग पे, उसको मिला फ्लोटिंग पे, बट उसको बेनिफिट हो गया 0.5% का. ओके, आई होप यू आर गेटिंग मी. दैट 0.5% गेन विच वी हैव कैलकुलेटेड अर्लियर, दैट्स गेन्स अल्टीमेट बेनिफिट इज गिवन टू द संदीप. ओके, क्योंकि यहाँ पे संदीप का रेट क्या हुआ है, कम हुआ है. ओके, नाउ नेट सेविंग ऑफ संदीप. ओके, बिफोर स्वैप कॉस्ट ऑफ लोन, देखो संदीप को अल्टीमेटली कितना सेविंग हुआ, वो तो बहुत सिंपल बात है. ओके, बिफोर स्वैप कॉस्ट ऑफ लोन, मतलब बेसिकली संदीप को कितना गेन हुआ है वो फाइंड आउट करना है. सी बिफोर स्वैप अगर संदीप ने लोन लिया होता तो संदीप का इंटरेस्ट रेट मिबोर प्लस 2.5%. ओके, बट आफ्टर स्वैप संदीप का इंटरेस्ट रेट देखो कितना है, मिबोर प्लस 2%. सो अल्टीमेट गेन कितना हुआ 0.5%, विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. ओके, आई होप यू आर गेटिंग मी. से सिंपल सी बात है, एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं, देन आगे क्या कैलकुलेशन क्या है, सिर्फ न्यूमेरिकल है, बट आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है. ठीक है, ऐसी वो 2 कंपनीज विल बी गिवन, सो यू हैव टू राइट द कंपनीज एंड देन उनका जो भी फिक्स इंटरेस्ट है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट है, उसका रेट, देन फाइंड आउट द डिफरेंस. ओके, then their objective, if it is given in the question you have to write, if not given then just swap objective will be written. Okay, then find out the difference. Okay, ये step important है कि difference कौन सा बड़ा है. Okay, here more difference is in floating interest. So floating में सबसे कम इंटरेस्ट वाली कंपनी कौन सी है वो फाइंड आउट करना है. ओके, यहाँ पे है सुष्मिता, सो उसका ऑब्जेक्टिव हमको चेंज करना है, फिक्स में से हम लोग ने हटा के उसको फ्लोटिंग में डाल दिया. ओके, सो हियर इट इज़ फ्लोटिंग, तो ऑब्वियसली हियर इट इज़ फिक्स. Then we will simply calculate as per their objective total interest.
एंड हियर टोटल इंटरेस्ट एज पर द स्वैप एंड ऑब्वियसली यहाँ पे गेन। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद आपको ये चार्ट जो है वो समझना है। यहाँ पे संदीप है, सुष्मिता है, उनका बैंक है, उन्होंने लोन दिया है। संदीप विल पे इंटरेस्ट टू द बैंक एज पर स्वैप। हियर ऑल्सो सुष्मिता विल पे एज पर स्वैप, ओके। बट संदीप objective was floating, so he will pay that floating interest to the Sushmita, okay. In after comparing the interest rate of both the companies, minimum interest rate we will apply to get a gain. So यहाँ पे संदीप का total rate नहीं लेना है 2.5, okay, only 1%, that is minimum rate, okay, MIBOR plus 1% of सुष्मिता। एंड सुष्मिता का कितना डिसाइडेड था 10%, उससे ऊपर वो देना ही नहीं चाहती है। सो वो दोनों क्या करेंगे, संदीप सुष्मिता को देगा, सुष्मिता संदीप को देगी, ओके। सो यहाँ पे उनका स्वैप वाला ऑब्जेक्टिव बैंक के साथ सेटल हो रहा है और उनका खुद का ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव एक दूसरे के साथ सेटल हो रहा है, ओके। सो आई होप यू आर गेटिंग मी। उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली किसको कितना गेन हुआ वो फाइंड आउट करना है, ओके। सिंपल, संदीप इज पेइंग 11% टू द बैंक, ओके, and he is receiving 10% from the Sushmita. So ultimate cost is 1% and Sandeep is paying MIBOR plus 1% to the Sushmita. So his ultimate cost is MIBOR plus 2%. And in case of Sushmita, it is simple. Sandeep is giving MIBOR plus 1% to Sushmita. Sushmita is giving same to the bank. So cancel. Sushmita is paying 10% to the Sandeep. So obviously ultimate percentage of Sushmita is 10%. And here whatever gain is there, that is received by Sandeep Limited, okay. Now we will go for numerical calculations which is very simple. See, first of all आपको करना क्या है, देखो, cash flow from Sushmita, this is from point of view of Sushmita and thereafter we will calculate for a Sandeep, ठीक है। MIBOR plus 1% is the rate, so first of all we are going to calculate the rates, okay. See, rates are already given in the question. First rate is 10% and thereafter 9, 9.5, 11, 10 and 8%, okay. We will use that. See, MIBOR means that fluctuating rate, that is 10%. This 1% is fixed, okay. MIBOR ये सुष्मिता का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तो उसके हिसाब से उसका जो भी रेट रहेगा वो, ओके। सो अल्टीमेट इट इज 11%, ओके। आई होप यू आर गेटिंग मी। सेम वे में हमको बाकी सबका भी करना है। सो नेक्स्ट परसेंटेज इज 9% plus 1%, it is 10%. Next is 9.5 plus 1%, it is 10.5%. 11, 10 और 8, 11, 10, 8 plus 1%, so here it is 12%, 11% and 9%, okay, done. Now see, interest amount payable to the banker. See, this MIBOR plus 1% सुष्मिता, ओके, एज पर स्वैप ही पे कर रही है ना बैंक को, सुष्मिता बैंक, और ये इंटरेस्ट एज पर स्वैप है, राइट। तो वही इंटरेस्ट हम लोग ने फाइंड आउट किया है। सी, MIBOR plus 1% interest which is paid by Sushmita to the bank, okay. Now we are going to calculate the amount. See, loan amount is 3 crore, okay, multiplied by 11%, but this 11% is for the whole year, entire year, but we want only 6 months, okay, because half yearly payment is there. So multiplied by 6 divided by 12. I hope you are getting this amount, 16,50,000, okay. Like that we will calculate the next one. 3 crore into 10% divided by multiplied by 6 divided by 12, okay, it is 15 lakh. तो सेम वे में हम लोग को बाकी लोग का भी कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट 3 crore into, now it is 10.5% into 6 divided by 12, it is 15,75,000,
नेक्स्ट इज 12%, 6/12, 18 lakh. Next is 11%, so into 6/12, 16,50,000. Okay, and now last is 9%, 6/12, done. Okay, सी अगर किसी को ये डाउट है कि यहाँ पे हम लोग ने इंटरेस्ट सिर्फ कैलकुलेट किया तो कुछ प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं हुआ है, सी information is given. This 3 crore will be repayable at the end of third year. Okay, so half yearly we are just paying interest. Okay, principal amount is not paid. That entire principal amount of 3 crore will be repayable at the end of third year. Same, repayable at the end of third year. So there is no issue of your principal amount. Just calculate interest. Okay, so now next column, that is fixed rate, दैट इज फिक्स इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू SDCL. सुष्मिता को फिक्स रेट कितना एप्लीकेबल था? ओके, सुष्मिता का एम क्या था? उसको फिक्स पे चाहिए, बराबर. तो फिक्स में सुष्मिता का रेट कितना एप्लीकेबल था? 10%. ओके, सो फटाफट आपको क्या करना है? 10% फाइंड आउट करना है. 3 करोड़ का इंटू 10% मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 12. ओके, सो सब जगह पे क्या आ जाएगा? 15 लाख. ओके, सो सुष्मिता को अगर फिक्स इंटरेस्ट पे उसने लोन लिया होता तो उसको हर जगह पे कितना पेमेंट करना था? 15 लाख. ओके, डन. Now we will take the total of these two columns. Okay, so here we have taken the total, that is 95,25,000 and here it is 90 lakh. ठीक है, now net amount received from or paid to संदीप. ओके, सो यहाँ पे बेसिकली नेट अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है. ओके, देखो सबसे पहले सुष्मिता ने देखो बैंक में कितना पे किया? 16,50,000. ओके, अगर उसका फिक्स रेट होता तो उसका कितना पेमेंट हो जाता? 15 लाख का. सो बेसिकली डिफरेंस निकालना है ना इन दोनों कॉलम का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 16,50,000 माइनस 15 लाख, 1,50,000. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 0. ओके, यहाँ पे 75,000. उसके बाद यहाँ पे है 3 लाख. ओके, एंड देन अगेन 1,50,000 एंड यहाँ पे माइनस में जाएगा. ओके, बैंक में आपने कम पे किया है और आपका अल्टीमेटली कितना पेमेंट हो जाता था अगर आपने फिक्स पे लिया होता? इट इज़ 1,50,000. ओके, निगेटिव. ठीक है, जस्ट टेक अ टोटल. तो अल्टीमेटली उसका क्या गेन है वो समझ में आएगा. 1,50,000 प्लस 75,000 प्लस 3 लाख प्लस 1,50,000 माइनस 1,50,000, बेसिकली इट इज़ 5,25,000. यहाँ पे डिफरेंस निकाला तो भी उतना ही आएगा, 5,25,000. ओके, 5,25,000. चलो, अभी ये हो गया सुष्मिता का पूरा कैलकुलेशन. ओके, एज पर स्वैप उसका ये इंटरेस्ट का पेमेंट है, एज पर उसका ऑब्जेक्टिव ये इंटरेस्ट का पेमेंट है. ओके, तो यहाँ पे इतना अपना अमाउंट आ गया. ठीक है, चलो अभी जाते हैं संदीप के पॉइंट ऑफ व्यू में. उससे पहले सुष्मिता का फाइनल कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. देखो, ओके, तो सुष्मिता ने बैंक में टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है? 95,25,000, राइट. और सुष्मिता का फिक्स इंटरेस्ट 10% के हिसाब से कितना आ रहा था? 90 लाख. ओके, तो नेट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम संदीप. ओके, ओके, इट्स वेरी सिंपल. अभी आपको पूरा समझ में आएगा. देखो, दिस इंटरेस्ट इज पेड टू द बैंक बाय सुष्मिता. सी, मिबोर प्लस 1%. बट ये जो मिबोर प्लस 1% है वो कौन दे रहा था सुष्मिता को? संदीप दे रहा था. ओके, सो मिबोर प्लस 1% संदीप दे रहा था सुष्मिता को, सुष्मिता दे रही थी बैंक को. बट अल्टीमेटली सुष्मिता का कॉस्ट कितना है? ओनली 10%. ओके, तो यहाँ पे देखो सुष्मिता ने
ये फिक्स के हिसाब से उसको कितना देना है बैंक को, मतलब वो कितना देना चाहती थी बैंक को, 90 लाख। ओके, बट स्वैप के हिसाब से कितना उसने एक्चुअल में पे किया है, 95,25,000। ओके, सो ये जो है 95,25,000 ये संदीप ने सुष्मिता को दिया, सुष्मिता ने बैंक को दिया। इतना आई होप समझ में आया रहेगा। और ये जो फिक्स रेट है ये यहाँ पे सुष्मिता ने दिया ना संदीप को। ओके, सो दिस इज द फ्लोटिंग रेट विच इज पेड बाय संदीप to Sushmita and Sushmita to bank. Okay, and this 10% fixed interest rate is paid by Sushmita to Sandeep. Okay, so ultimate cost of your Sushmita is this. Okay, so Sushmita का ultimate cost कितना है, 90 लाख। ओके, बट एक्चुअल में बैंक में कितना पे किया है, 95,25,000। तो ऑब्वियसली ये जो ऊपर का है वो कौन पे करेगा, संदीप। किसको, सुष्मिता को। ओके, देखो नेट अमाउंट रिसीव फ्रॉम संदीप, किसने, सुष्मिता ने रिसीव किया। आई होप आपको समझ में आया रहेगा। ओके, देखो एज पर स्वैप सुष्मिताज टोटल इंटरेस्ट इज 95,25,000 बट एज पर हर ऑब्जेक्टिव इट शुड बी 90 lakhs। ओके, हियर 95,25,000, हियर 90 लाख। तो ऑब्वियसली ऊपर का जो 5,25,000 है वो कौन देगा, उसको संदीप देगा। ओके, आई होप सुष्मिता का पूरा पार्ट आपको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट लास्ट पार्ट पे जाते हैं, संदीप के पार्ट पे। सी फ्लोटिंग रेट टू संदीप मिबोर प्लस 2.5%। ओके, सी फर्स्ट कॉलम हियर, सपोज इफ दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्वैप एग्रीमेंट, अगर उनका स्वैप एग्रीमेंट नहीं होता तो संदीप का प्रॉब्लम क्या होता, संदीप को उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, फ्लोटिंग था, राइट। तो संदीप पूरा फ्लोटिंग पे करता ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरा का पूरा उसका फ्लोटिंग का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ओके, इट्स वेरी सिंपल, आपको रेट डालना है प्लस 2.5 करके आपको पूरा आंसर निकालना है। ठीक है, चलो जैसे हम लोग ने सुष्मिता का रेट निकाला वैसे ही यहाँ पे, बस वहाँ पे मिबोर प्लस 1% था, यहाँ पे 2.5% है। सी इफ देर इज नो स्वैप एग्रीमेंट, सो संदीप का पेमेंट कितना होता, यहाँ पे मिबोर प्लस 2.5%, सो रेट्स आर कैलकुलेटेड। ओके, नाउ इंटरेस्ट अमाउंट पेएबल एट अ फ्लोटिंग रेट, ये फ्लोटिंग रेट पे संदीप ने कितना पेमेंट किया होता बैंक को, वो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो सिंपली सी, जैसे यहाँ पे हम लोग ने रेट फाइंड आउट किया और उसका अमाउंट फाइंड आउट किया, वैसे ही यहाँ पे करना है। चलो फटाफट करते हैं हम लोग। संदीप का जो भी अमाउंट्स रहेंगे फ्लोटिंग के हिसाब से, सी 3 करोड़ multiplied by 12.5% multiplied by 6 divided by 12. Okay, it is 18,75,000. Next 3 crore into 11.5% into 6 by 12, it is 17,25,000. Next 3 crore into 12% into 6 by 12, it is 18 lakh. Thereafter it is 13.5%. 13.5% into 6 by 12, 20,25,000. 12.5 into 12.5% into 6 by 12, 18,75,000 and 10.5, 15,75,000. Okay, so if there is no swap agreement, in that case संदीप का पेमेंट देखो, इसका इंटरेस्ट रेट और उसका अमाउंट, इतना वो पेमेंट बैंक को करता अगर स्वैप एग्रीमेंट नहीं होता तो। ओके, इंटरेस्ट अमाउंट पेड टू द बैंकर। ओके, बट नाउ एक्चुअली बैंक में कितना पे कर रहा है वो, 11% के हिसाब से नाउ स्वैप एग्रीमेंट में। ठीक है, सेम वे में हम लोग ने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया है। देखो एप्लीकेबल रेट कितना है, अभी बैंक में कितना पेमेंट चल रहा है, लाइक दैट। सो यहाँ पे इंटरेस्ट पेड टू द बैंकर एज पर 11%, 11% के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि वो बैंक में कितना पेमेंट कर रहा है। ठीक है, 3 crore इंटू 11% इंटू 6 बाई 12, बैंक में उसने कितना पेमेंट किया सब जगह पे, 16,50,000।
डन। नेट अमाउंट पेड और रिसीव्ड फ्रॉम SDCL, ये तो बहुत सिंपल है, देखो यही कॉलम पूरा कॉपी करना है। नेट अमाउंट देखो, संदीप और सुष्मिता में क्या डिसाइडेड था, संदीप ने क्या बोला था सुष्मिता को कि तुझे 10% फिक्स चाहिए, राइट, ऊपर का जो भी रहेगा वो मैं पे करूँगा, ठीक है। देखो ये मिबोर वाला पेमेंट किसने किया है, संदीप ने, ओके। तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखो सी, एक मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पे सी टोटल इंटरेस्ट इज 11%, राइट, उसमें से सुष्मिता कितना देने को रेडी है, 10%, तो ऊपर का जो 1% है वो कौन पे करने वाला है, संदीप, ओके। सो दैट्स वाई 1,50,000 हमें यहाँ पे अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज 11%, दिस इज 10%, अल्टीमेट अमाउंट इज बेयर बाय संदीप, तो संदीप ने पेमेंट किया ना सुष्मिता को, ये कि पूरा का पूरा कॉलम यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ओके। डैश 75, 3 लाख, 1,50,000 एंड नेगेटिव 1,50,000, ओके। चलो तो यहाँ पे हम लोग फाइनल अमाउंट निकालेंगे, नेट सेविंग ऑफ इंटरेस्ट। सी अगर यहाँ पे स्वैप नहीं होता तो 18,75,000 इतना टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट था, राइट। उसमें से एक्चुअल में उसने बैंक में कितना पे किया है, 16,50,000, सी माइनस करना और कुछ नहीं करना, एंड सुष्मिता को 1,50,000 दिया है, तो अल्टीमेटली सेविंग कितना हुआ, 75,000, ओके। बेसिकली ये कॉलम माइनस ये दोनों, ठीक है। नेक्स्ट 17,25,000 इंटरेस्ट ही शुड पे टू द बैंक इफ देयर इज नो स्वैप एग्रीमेंट। उसके बाद एक्चुअल में पेमेंट कितना किया है, ओनली 16,50,000, तो उसने कितना सेविंग किया यहाँ पे, 75,000। देन नेक्स्ट 18 लाख माइनस दिस 16,50,000 माइनस 75,000, अल्टीमेट सेविंग इज अगेन 75,000, टोटल सेविंग उसका आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। 20,25,000 माइनस 16,50,000 माइनस 3 लाख, अगेन 75,000, ओके। देन नेक्स्ट 18,75,000 माइनस 16,50,000 माइनस 1,50,000, हियर इट इज अगेन 75,000, सब जगह पे उसने 75,000 का सेविंग किया है। नाउ लास्ट सी 15,75,000 माइनस 16,50,000 माइनस 1,50,000 विच इज़ निगेटिव, सो फाइनल आंसर इज अगेन 75,000। मैं आपको वापस करके दिखाती हूँ, 15,75,000 नॉर्मल माइनस 16,50,000 माइनस 1,50,000 बट इट इज़ इन निगेटिव, इज इक्वल टू करने के बाद नेट गेन हो रहा है 75,000, ठीक है। चलो तो ये सारे जो कॉलम्स हैं इनका हम लोग टोटल निकालेंगे। सी विदाउट स्वैप संदीप would have to pay 1,08,75,000 to the bank. विथ स्वैप बैंक को कितना पे किया है, 99 लाख, और यहाँ पे सुष्मिता को 5,25,000। सो अल्टीमेटली ये माइनस ये दोनों करने के बाद पूरा गेन कितना हो रहा है, 4,50,000 का, वो किसको हो रहा है, संदीप को हो रहा है, ठीक है। सी हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 0.5 का गेन हो रहा था पूरे ट्रांजैक्शन में, हम लोग ने लास्ट टाइम ये लास्ट पेज पे निकाला था, राइट। 3 करोड़ का पूरा आपका लोन है, मल्टीप्लाइड बाय 0.5 बराबर 0.5%, ओके। कितने साल का लोन है, 3 इयर्स का, तो कितना आ रहा है, 4,50,000। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। सो लेट्स चेक द आंसर। सी फाइनल आंसर्स आर करेक्ट, ओके। यहाँ पे उन्होंने 2 टेबल बनाया हुआ है संदीप के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैंने एक ही टेबल में सब कुछ आपको कैलकुलेट करके दिखाया है ताकि कैलकुलेशन कम हो, ओके। सो अल्टीमेट आंसर यू हैव टू चेक, दैट इज 4.50 lakhs, ओके, दैट इज 4,50,000। एंड हियर क्रॉस चेक मैंने अभी आपको करके दिखाया ना, 3 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 0.5% मल्टीप्लाइड बाय 3 ईयर्स, सो इट इज़ 4,50,000, ओके। सो यहाँ पे 4,50,000, यहाँ पे करोड़ नहीं आना चाहिए, 4,50,000 आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 67 एज पर न्यू सिलेबस खत्म किया है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड इलस्ट्रेशन नंबर 67। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel playlist to get more videos on various topics, and also join the telegram group to get the notes
of earlier topics also and now new topics also. Okay, so thanks for watching, friends.